हेलो एवरीवन, नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू रॉकेट रफ्तार। एंड आज हम क्या पढ़ने वाले? आज हम पढ़ने वाला ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। हमने जनरेशन करवाया नर्व इम्पल्स का, हमने कंडक्शन करवाया, अभी बारी है ट्रांसमिशन की। व्हाट इज ट्रांसमिशन? ट्रांसमिशन इज बेसिकली नथिंग बट हमने जनरेशन करवाया, फिर कंडक्शन से हम एक्सॉन टर्मिनल तक तो ले आए इम्पल्स को। बट अब क्या करना है? अभी एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे डेंड्राइट, दूसरे जो न्यूरॉन का डेंड्राइट है उस पर भी तो पहुंचाना पड़ेगा ना। सो दैट्स बेसिकली व्हाट ट्रांसमिशन मीन्स. Transmission means when you are transmitting or when you are transporting the impulse from one neuron to another. That's basically transmission of nerve impulse. So without wasting any time, let's get started. Let's learn with the raftar of rocket. Okay, so let's start. Basically, the first thing you must know when you are understanding this topic is what is a synapse, is to know that what is a synapse. Well, 10th में तो पढ़ा ही होगा. Synapse means like basically line आती है 10th की book में that synapse is the space between two neurons. That's it. Well, that's true, of course. Synapse is a space between two neurons, and if impulse को transmit करना है एक neuron से दूसरे neuron तक, तो साइनेप्स के थ्रू उसको जाना पड़ेगा, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कि वी हैव टू नो द डायग्राम्स फर्स्ट, किसको क्या कहते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू लर्न द फंक्शन और देन वी आर गोइंग टू लर्न द प्रोसेस. So first of all, let me tell you everything. So this is our axon terminal. This is what? This is our axon terminal of let's say neuron number 1. दिस इज़ आवर एक्सॉन टर्मिनल. एंड एक्सॉन टर्मिनल पर ये क्या है अपना? ये है अपना साइनेप्टिक नॉब. क्या है ये अपना? साइनेप्टिक नॉब. एंड साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या है? ये है साइनेप्टिक वेसल्स, synaptic vesicles. Sorry, my mistake. It's synaptic vesicles. What is it? It is synaptic vesicles. It is synaptic vesicles. And synaptic vesicles के अंदर क्या है? synaptic vesicle जो यहाँ पे मैंने येलो कलर का डॉट किया है, what is it? It is neurotransmitter, right? It is what? It is neurotransmitter. Don't mind my handwriting, they are a bit bad. Okay, so this is our axon terminal, this is our synaptic knob, and this is our synaptic vesicle in which neurotransmitters are present, and which are actually the messengers, which are actually the neurotransmitters से impulse को carry on करेंगे second neuron तक, right? So that's it about the first neuron. And this is important. This is what we call presynaptic membrane. This is what we call presynaptic membrane. And this is what we call postsynaptic membrane. This is presynaptic membrane, this is postsynaptic membrane, and between the presynaptic membrane and postsynaptic membrane is our synaptic cleft. This is our synaptic cleft. And by combining presynaptic membrane, synaptic cleft, and the postsynaptic membrane, we get synapse. So synapse is not just the space, it is the combination of presynaptic membrane, the synaptic cleft, and the postsynaptic membrane. Remember that, because 10th में ऐसा लिखा है कि the space between the two neurons is our synapse, but it is not true, of course, because ये जो space है उसको synaptic cleft बोलते हैं, right? साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो कहाँ पे इट कैन बी ईदर प्रेजेंट और इट कैन बी ईदर एब्सेंट. एब्सेंट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, राइट? बट साइनेप्स इज ऑलवेज प्रेजेंट, ऑफ कोर्स. तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है वो प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है. प्रेजेंट की जैसे देर आर टू टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस इन आवर बॉडी. इट्स केमिकल साइनेप्स एंड इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. नाउ ध्यान देना इसके ऊपर, केमिकल साइनेप्स एंड इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. देर आर टू टाइप ऑफ साइनेप्सिस, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल. केमिकल साइनेप्स जो होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स कैरी करते हैं. दिस इज व्हाट आई एम शोइंग. इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल साइनेप्स. केमिकल साइनेप्स जो होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर कैरी करते हैं, और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होते हैं उसमें न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होता है. एंड दे लैक साइनेप्टिक क्लेफ्ट. उसमें बहुत प्रॉक्सिमिटी में होती है अपनी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. उसमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट एब्सेंट होता है, ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है. ओके, सो दैट इज आर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होता है एज लाइक नॉर्मली दो
जगह कम है तो हम यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो फटाफट पहुँच जाएंगे, एक घर और दूसरा घर है, और दूसरे घर के बीच में जगह कम है तो हम फटाफट पहुँच जाएंगे, ज़्यादा है तो हमें देर लगेगी। सेम वे अगर साइनेप्टिक क्लेफ्ट कम है तो ज़्यादा पहुँच जाएगा, और साइनेप्टिक क्लेफ्ट ज़्यादा है तो देर लगेगी। तो केमिकल साइनेप्स में साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है, ऑफ कोर्स इट टेक्स लॉन्गर टाइम then the electrical synapse. Electrical synapse में the presynaptic membrane and the postsynaptic membrane, both of them are in close proximity, which leads to faster conduction, which leads to faster transmission of the nerve impulse. Okay, and last but not the least, these are our receptors. Of course, अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स जा रहे हैं तो उनको रिसीव करने के लिए भी तो कुछ होना पड़ेगा, तो दिस आर रिसेप्टर्स विच आर ऑफ कोर्स प्रोटीनेशियस इन नेचर। सो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ पे इम्पल्स आएगा, द इम्पल्स टूवर्ड्स, हमेशा ऑफ कोर्स टूवर्ड्स द एक्सॉन टर्मिनल आता है तो टूवर्ड्स द एक्सॉन टर्मिनल इम्पल्स आएगा। एंड या वन थिंग इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में, वन थिंग याद रखना कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में एक्सॉन में हमने सीखा कि एक्सॉन में कंडक्शन कैसे होता है, साइड ए, साइड बी एंड साइड सी। सो सेम वे लाइक वैसा ही कंडक्शन होगा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, बिकॉज देर इज नो साइनेप्टिक लेफ्ट, सो ऑफकोर्स वैसा ही कंडक्शन होगा। ओके, सो what I was saying is impulse यहाँ से यहाँ आया, and then the neurotransmitter gets released in the synaptic cleft and then gets released in the synapse, and then they reach the postsynaptic membrane and the receptors receive the neurotransmitters, which leads to further change in the dendrite, and which leads to the generation of nerve impulse thereover, and further process अपनी जो हमने सीखी जनरेशन, कंडक्शन एंड देन ट्रांसमिशन की प्रोसेस चालू फिर से होगी। ओके, सो वही प्रोसेस आई विल टीच यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट प्रोसेस है कि ये है अपना, सपोज कि मैंने फिर से ड्रॉ किया है, दिस इज आवर साइनेप्टिक नॉब। अब मैं लेबल नहीं कर रही हूँ, बट या लेट्स लेबल इट साइनेप्टिक नॉब। ओके, दिस आर न्यूरोट्रांसमीटर्स। अभी क्या हुआ, अभी इम्पल्स आया। सो सी, इम्पल्स जो है वो दो टाइप के इम्पल्स होते हैं, इट कैन ईदर बी एक्साइटेटरी और इट कैन ईदर बी इनहिबिटरी। अभी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी है क्या? एक्साइटेटरी मीन्स जो अगर वो नेक्स्ट न्यूरॉन पे गया, ओके, जो इम्पल्स नेक्स्ट न्यूरॉन पे गया तो क्या होगा, वो फिर रुक जाएगा। इनहिबिट करना क्या होता है, रोकना, राइट। एक्साइटेटरी मीन्स वो आगे तक जाएगा, इनहिबिट करना क्या होता है, रोकना। सो इनहिबिटरी इनहिबिटरी इम्पल्स अगर होगा तो क्या होगा, वो नेक्स्ट न्यूरॉन पर रुक जाएगा। जैसे कि डोपामाइन एंड सेरोटोनिन, वो दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स है, क्या है, वो दोनों इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है। अगर वो रिलीज हुए तो वो आगे नहीं बढ़ते। अपना एसिटाइल कोलिन है, वो एक्साइटेटरी है, वो अगर रिलीज हुआ तो वो आगे बढ़ता है, आगे इम्पल्स, कंडक्शन, जनरेशन लाइक फर्दर ऑन होता है। बट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर रिलीज होते हैं, इनहिबिटरी इम्पल्स अगर रिलीज होता है तो आगे जाने से वो रुक जाता है। दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, सो अभी क्या हुआ, अभी इम्पल्स आया, राइट, इम्पल्स आया तो क्या होगा, यहाँ पे कैल्शियम +2 लिगेंड चैनल्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है, कैल्शियम +2 लिगेंड चैनल्स। ओके, अभी इम्पल्स आया तो क्या होगा, कैल्शियम +2 चैनल लिगेंड चैनल्स जो है वो ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाएगी तो क्या होगा, कैल्शियम +2 का इन्फ्लक्स होगा। अभी कैल्शियम +2 क्या आएगा, अंदर आएगा, कैल्शियम +2 अंदर आएगा तो क्या करेगा, ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है, ये क्या है, अपना साइनेप्टिक वेसिकल है, एक मिनट, अपना साइनेप्टिक वेसिकल जो है उसको यहाँ पे वो फ्यूज़ करवा देगा। क्या करवाएगा, फ्यूज़ करवाएगा। ये साइनेप्टिक वेसिकल अपना जो है वो कैल्शियम +2 क्या कराएगा, वो साइनेप्टिक वेसिकल की जो मेम्ब्रेन है वो अपनी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ उसको फ्यूज़ करवाएगा। वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करवाएगा तो क्या होगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज़ हो जाएंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। अभी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो गए। ओके, सो फर्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट की इम्पल्स आया, इम्पल्स अराइव हुआ, फर्स्ट स्टेप इम्पल्स आया। दूसरा क्या हुआ, कैल्शियम +2 चैनल जो है, कैल्शियम +2 लिगेंड चैनल्स है वो ओपन हो गई।
एनसीईआरटी में बोला है कि आयन चैनल्स बोला है एनसीईआरटी में. सो रिमेंबर दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी. कैल्शियम प्लस टू लिगेंड चैनल्स ओपन होती है या फिर इस यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में अभी सोडियम प्लस टू और क्लोरीन माइनस बी चैनल आएगी, तो वो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बट दिस इज यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट. ओके, सो कैल्शियम प्लस टू लिगेंड चैनल्स ओपन हो गए. वो उससे क्या होगा, उससे जो अपना सिनेप्टिक वेसिकल है वो फ्यूज हो जाएगा. सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूजेस विद द presynaptic membrane. Then what happens is the neurotransmitters are released into the synaptic cleft. Neurotransmitters are released into the synaptic cleft. ओके इतना समझ में आ गया. इट्स लाइक यू नो, एक घर से दूसरे घर जा रहे हो, तो एक घर से दूसरे घर जाने में क्या हो रहा है, आप जा रहे हो, दरवाज़ा खोल रहे हो, खोल रहे हो, दरवाजे के बाहर जा रहे हो, मीन्स घर के बाहर आ गए, फिर जो दूसरे घर के बीच में जो रास्ता है उसको क्रॉस कर रहे हो, दूसरा घर का दरवाज़ा खोल रहे हो और वहाँ जा रहे हो. दैट्स इट, इतना ही है, दूसरा कुछ नहीं है. यहाँ पे भी इतना ही है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, एक घर से दूसरे घर जा रहा है. सो इट्स बेसिकली दैट. सो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो गए साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो गया, तो यहाँ पे अपने रिसेप्टर्स प्रेजेंट ही है. अभी रिसेप्टर्स क्या करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स है उसको रिसीव करेंगे. The neurotransmitters are received by the receptors on the postsynaptic membrane, on the postsynaptic membrane. अभी ये रिसीव हो गया तो क्या होगा, रिसीव यहाँ पे रिसेप्टर्स ने न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव कर लिया. ओके, दे रिसीव्ड. नाउ व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोडियम प्लस लिगेंड चैनल प्रेजेंट है. नाउ दिस इज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर, और दिस इज व्हाट यू नो, बिकॉज सोडियम प्लस लिगेंड चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे -70 मिलीवोल्ट्स -55 होता है. वेल लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट राइट नाउ. ये हुआ. अभी क्या होगा, सोडियम प्लस लिगेंड चैनल्स है वो खुल जाएंगे. सोडियम प्लस लिगेंड चैनल्स खुल जाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही रिसेप्टर्स है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करेंगे तो सोडियम प्लस टू लिगेंड चैनल्स खुल जाएंगे. सोडियम प्लस टू लिगेंड चैनल्स खुल गए तो क्या होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा. तो क्या होगा, यहाँ पे जो रेस्टिंग पोटेंशियल था ऑलरेडी -70 मिलीवोल्ट, वहाँ से कितना हो जाएगा, -55 मिलीवोल्ट. एंड देन ये क्या हुआ, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स हो गया, फिर आगे कंडक्शन होगा. बट दिस only happens when the neurotransmitter is a excitatory neurotransmitter, जैसे कि acetylcholine. Acetylcholine is an example of excitatory neurotransmitter, and if the neurotransmitter is acetylcholine or any of the excitatory neurotransmitters, then and then only the sodium plus ligand channels will open. Otherwise, if it is an inhibitory neurotransmitter like dopamine or serotonin, what will open, chlorine minus ligand channels will open. This is inhibitory as what, as like inhibitory से मैं बोलना क्या चाहती हूँ, क्लोरीन प्लस लिगेंड चैनल्स खुल गए. अभी क्या करेगा, क्लोरीन का इन्फ्लक्स होगा. नाउ लाइक खुद के दिमाग से सोचो, सोडियम प्लस का इन्फ्लक्स हो रहा है तो -70 से -55 मिलीवोल्ट हो रहा है, जो आगे कंडक्शन के लिए आगे कंडक्शन के लिए हमें ज़रूरी है, राइट. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द फर्दर कंडक्शन. बट अभी क्लोरीन प्लस लिगेंड चैनल्स खुल रहे हैं तो वो अंदर आएगा, क्लोरीन माइनस आयन अंदर आएगा, तो क्या होगा, -70 से क्या हो जाएगा, -90 मिलीवोल्ट, विच वी ऑल्सो कॉल hyperpolarization. And if hyperpolarization happens तो of course further conduction नहीं होगा, which inhibits the further conduction of the impulse, and that is why the neurotransmitter that leads to the opening of chlorine ligand channels are called inhibitory neurotransmitters. For example, dopamine and serotonin. Okay, that's it. इतना ही है. ऐसे ही वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ऐसे ही जाता है, लाइक दिस. पहले क्या होता है, फर्स्ट व्हाट हैपन्स इज, फर्स्ट अपना इम्पल्स आता है, कैल्शियम प्लस टू लिगेंड चैनल्स खुल जाती है, कैल्शियम प्लस टू का इन्फ्लक्स होता है, विच हेल्प्स इन फ्यूजिंग द
synaptic vesicles membrane to the presynaptic membrane, which leads to the release of neurotransmitter in the synaptic cleft, which are then received by the receptors present on the postsynaptic membrane, and due to which sodium, if it is excited, then sodium plus ligand channels will open, which will cause what, minus 70 millivolts से minus 55 millivolt हो जाएगा. And if the neurotransmitter is inhibitory, तो chlorine minus ligand channels खुल जाएंगे, which will cause hyperpolarization, which will inhibit further conduction of the nerve impulse. That's it, that's all, that's over. इतना ही है. क्लोरीन माइनस लिगेंड चैनल्स और सोडियम प्लस लिगेंड चैनल्स को आयन चैनल्स बोली है. किसमें? अपनी एनसीईआरटी में. एनसीईआरटी में स्पेसिफिक नहीं दिया है कि कैल्शियम प्लस 2 लिगेंड चैनल्स खुलती है, सोडियम प्लस लिगेंड चैनल्स खुलती है, या फिर क्लोरीन माइनस लिगेंड चैनल्स खुलती है. उसमें सिर्फ आयन चैनल्स बोला है. दैट्स इट. It's very simple, you know, steps बना के याद रखो. It's very simple to remember. प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, एंड दैट्स इट. एक घर से हम दूसरे घर जैसे जाते हैं, दैट इज वैसे ही जो अपना इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन जाता है. दैट्स इट, दैट्स ऑल. और मैंने आपको बताया जैसे कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स, दो टाइप के साइनेप्स आते हैं. इलेक्ट्रिकल, लेट मी राइट इट फॉर यू. इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स. सो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है वो रेयर है अपने सिस्टम में. दिस आर मोर, this consists of neurotransmitters. This does not have any neurotransmitters, and this have no synaptic cleft, बिकॉज जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो दोनों क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती हैं इलेक्ट्रिकल में. एंड दिस ऑफ कोर्स कंटेन्स synaptic cleft. These are rare, these are more, this does not have any neurotransmitter, this have neurotransmitters. And one more thing that you have to remember is the electrical synapse जो है वो bidirectional होते हैं, means दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं, राइट. और ये अपने यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यूनिडायरेक्शनल. Now what do you mean by unidirectional? Of course neurotransmitter है इसलिए unidirectional है, ये भी याद रखना है. क्वेश्चन आता है ऐसा कि why are they unidirectional? Because they have neurotransmitters. यहाँ पे neurotransmitter है, वो रिलीज़ हुआ तो वो ऐसे ही जा पाएगा, वापस नहीं जा पाएगा. इम्पल्स ऐसे ही जाएगा, इम्पल्स हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएगा. दैट इज़ वाई इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, दैट इज़ वाई इट इज़ बाई डायरेक्शनल, बिकॉज इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है वो रेयर है अपने सिस्टम में. एंड या वन मोर थिंग दैट दीज आर फास्टर और क्विकर रिस्पॉन्स. These are quicker and these are relatively slower than the electrical ones. So that is it. That is all about transmission of nerve impulse. You talk about how the impulse is transmitted or travels from one neuron to the another neuron, how it travels to the synapse, from presynaptic membrane to the synaptic cleft to the postsynaptic membrane, on which receptors are present, which receives the neurotransmitter, and due to which either sodium plus ligand channels opens or chlorine minus ligand channel open, and depending upon the neurotransmitter, if it is excitatory or inhibitory, further conduction will happen or not, it will be decided on that. And there are two types of synapses, electrical synapses and chemical synapses. Chemical synapses is a neurotransmitter, electrical synapses does not have any neurotransmitter. Chemical synapses are more, while electrical synapses are rather rare in our nervous system or in our body. And electrical synapses are of course more quicker because they do not have any synaptic cleft. Their presynaptic membrane, the postsynaptic membrane are in close proximity, due to which the impulse is quicker or it is faster. And because the chemical synapses have neurotransmitters, they are unidirectional, or they are rather slower. They are unidirectional, and the electrical synapses are bidirectional. That's it, that's all. Thank you very much. I hope आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा. I hope you cleared this topic,
And thank you very much. We will meet you soon next time. Till then, bye bye, and keep learning with the Raftar of Rocket. Thank you. Bye bye.